Good afternoon, one and all present here. On the behalf of GS College of Economics and Commerce, Jabalpur, we cordially invite Navdeep Kaur Ma'am, CEO, NAV Classes, #1 YouTube channel in JRF category. Ma'am, top educated research scholar at NSUT Delhi. Ma'am has an experience of 10 years teaching and she's an expert in NDA, UGC, NET, JRF, and she is the best motivator. She has studied at Delhi School of Economics, Delhi University, and been awarded UGC NET JRF in first attempt. She has achieved first division in MCOM, certificate of merit, Delhi University, and has also achieved distinction award from Punjabi Academy, Young Talent Award 2006-7. Ma'am has done research papers which have been published on value of social capital, a new arena in international journal. She has also published a research paper on topic FDI in multi-brand retail effect in comparable countries and Indian prospect. Ma'am, we invite you. It will be immense listening to you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. Am I audible to you? Yes, ma'am. So it is so prestigious moment for me to delegate this webinar with you all. Thank you so much for inviting me. So friends, actually we are going to conduct a pre-PhD coursework right now. And how many of you are aware about your literature reviews and you are doing? You are doing your literature reviews and all? Yes, ma'am. Great. So let me present my screen if it is possible. So can I? And you can pin my video here. So can you see my screen? Yes, ma'am. It's visible. It's visible. Great. So our today's quote is stress less and enjoy the best. So make sure कि just keep enjoying your life and um, make sure to take lesser stress because already हमारी life में बहुत ज़्यादा stress है ना जी. So this is all about me, ma'am already discussed with you and सबसे इम्पॉर्टेंटली फॉर मी इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि सिर्फ मेरा ही नहीं मेरे लर्नर्स के साथ भी कि आप सब की जो सक्सेस है उसको मैं सबसे आगे रखती हूँ. सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई लर्नर्स who succeed with NET JRF and are doing great in PhD as well. So I am author of NET JRF book as well. So right now we will be discussing more of literature review. So research के process में so are you comfortable in English or Hindi or both languages? Both languages, ma'am. Okay, ठीक है. Great. So friends, research process में सबसे पहले we have to see कि हमारा topic क्या है, literature का research problem क्या है, and research problem जब हमें idea हो जाता है then we have to do tons of literature review, right? But आपको पता है कि जो topic हम decide करते हैं पहले वो कभी भी complete नहीं होता है. It means we have to एनालाइज फर्दर और जब हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो हमारा टॉपिक उससे और ज़्यादा अच्छा हो जाता है. आर एबल टू गेट मी? मीन्स अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपना माइंडसेट ये सोचे कि मैंने जो टॉपिक फर्स्ट चूज किया था वही आगे चलेगा, दैट इज रॉन्ग. बिकॉज जब हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं तब हमें काफ़ी चीज़ें पता चलती है कि ऑलरेडी हमारे रिसर्च से रिलेटेड ये सभी काम हो चुके हैं, है ना. वी ऑलरेडी डन दीज ऑल थिंग्स, सो वी हैव टू डू समथिंग एल्स. तो उस समथिंग एल्स को फाइंड करने के लिए लिटरेचर रिव्यू का रोल बहुत ज़्यादा है. जब हम पीएचडी कर रहे हैं, कोर्स वर्क कर रहे हैं और उसके बाद हमें आरडीसी के लिए जाना है तो सबसे ज़्यादा टाइम हम जो लेते हैं वो लिटरेचर रिव्यू पे लेते हैं. एंड देन नेक्स्ट जब हम टाइम लेते हैं तो फिर उसको लिटरेचर को बेसिकली जी. एम आई विजिबल नाउ? माई स्क्रीन इज विजिबल? हाँ जी. सो फ्रेंड्स उसके बाद जो सबसे ज्यादा हम टाइम लगाते हैं वो किस में लगाते हैं? ओके सॉरी. नाउ इज इट विजिबल? यस. ओके. हाँ जी.
सो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जो टाइम हमारा लगता है लिटरेचर व्यू, एंड उसके बाद हमारा डाटा कलेक्शन में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, एंड एनालिसिस का ये है कि अगर आपको पता है कि किस तरीके से किया जाता है तो वो कंपैरेटिवली कम टाइम लगता है ना। तो लिटरेचर व्यू इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो लिटरेचर रिव्यू हम करते क्यों हैं? डू यू नो? लिटरेचर रिव्यू हम करते हैं सबसे मेनली तो ये देखने के लिए कि ऑलरेडी रिसर्चेज में क्या हो चुका है, एंड हमें उसके रिलेटेड कुछ गैप्स फाइंड करने होते हैं। लाइक देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ गैप्स। एविडेंस गैप, मे बी प्रीवियस स्टडीज में कुछ टाइप के एविडेंसेस नहीं निकले हुए जो आपको लगता है कि आप कुछ न्यू निकाल सकते हो, है ना। नॉलेज गैप, देखो नॉलेज गैप थोड़ा सा मुश्किल है निकालना, क्योंकि ऑलरेडी आपके वर्ल्ड में टन्स ऑफ नॉलेज अवेलेबल है ना। ऑलरेडी बहुत सारे लिटरेचर सबने किया हुआ है। ये कौन कर पाता है? जो अपने टॉपिक के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी कर चुका होता है, लाइक उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका होता है, तब जाके तो हम वर्ल्ड को एक न्यू नॉलेज दे पाते हैं। सो अभी इस वक्त हम लोग ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं एविडेंस या अदर टाइप ऑफ गैप्स में जब हम पीएचडी कर रहे हैं। एंड इफ यू हैव इमेंस नॉलेज, यू नो कि ऑलरेडी ये सब कुछ हो चुका है, मैं यहाँ पर एकदम नया थ्योरी दे सकता हूँ, लाइक बी एफ स्किनर ने थ्योरी दी और अदर थ्योरिस्ट ने थ्योरीज दी है, देन यू आर एबल टू गिव योर रिसर्च ऑन बेस्ड ऑन नॉलेज गैप। हाँ जी। देन देयर इज प्रैक्टिकल नॉलेज गैप। दिस वी कैन डू हाउ? क्योंकि कुछ लिटरेचर्स हैं वो डिस्क्रिप्टिव में या फिर थ्योरेटिकल वे में आई हुई है, बट उसको रियल लाइफ में वो सच्ची में लागू होती है कि नहीं, वो उसका होता है प्रैक्टिकल नॉलेज। लाइक बहुत सारी रिसर्चेस थी जिन्होंने कहा ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको किया जा सकता है, लेकिन कोविड से पहले हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन को उतना इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं गया, या फिर हम सच्ची में इतना नहीं कर पा रहे थे, जो वाकई में जब अब कोविड आ गया तो इसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करके देख रहे हैं। अभी हम लोग वेबिनार से जुड़े हैं, जस्ट इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल नॉलेज गैप को यहाँ पर हम कोविड के केस में फिल कर पाए, है ना। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद मी? बिकॉज यार कुछ चीजें सिर्फ थ्योरी में है, बट नाउ इन रियलिटी में जब हम उसको अप्लाई करते हैं तो दिस यू कैन डू फ्रॉम योर रिसर्च। जी, आई एम रीडिंग योर कमेंट्स एज वेल इफ दे आर अवेलेबल। ग्रेट ग्रेट। देन फ्रेंड्स, अब आ जाता है आपका मैथडोलॉजिकल गैप। मैथडोलॉजिकल गैप में होता है कि हो सकता है कि प्रीवियस रिसर्च ऑलरेडी किसी अदर मेथड से की गई है, लेकिन हम लोग उसको अलग चेंज मेथड से करना चाहते हैं, ठीक है। सो दैट गैप वी कैन फिल। इम्पेरिकल गैप, इम्पेरिकल का मतलब उसको प्रैक्टिकली या फिर इम्पेरिकली टेस्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। थियोरेटिकल गैप हो सकता है। देखो यहाँ पे सबसे इजी है कि आपने देखा हम सब ज्यादातर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के बैकग्राउंड से आई गेस। सो अगर एमएम अप्रोच को देखो तो एमएम एंड मिलर, मोदिग्यानी एंड मिलर जी ने यस जो थ्योरी दी, उन्होंने ही अपनी ही पर्टिकुलर थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए फिर दूसरी थ्योरी दी थी फाइनेंस के अंदर, है ना। फिर उन्होंने विद टैक्सेस दी, विदाउट टैक्सेस दी, और पर्सनल टैक्स भी डाल दिए उसमें, कॉर्पोरेट टैक्स भी डाल दिए। सो इट मीन्स उनको पता है कि यहाँ इस थ्योरी में हम लोग अपनी ही थ्योरी को कंबाइन करके उससे एक नई थ्योरी भी निकाल सकते हैं, है ना। तो इसी तरीके से स्पिनोजा जी ने भी यही कहा है कि सब यहाँ तीन तरीके होते हैं नॉलेज के। एक होता है फर्स्ट टाइम कोई न्यू नॉलेज दे देता है, लाइक रैशनलिज्म वाले जो थे रिसर्चर्स, वो क्या कहते थे कि हर चीज 100% श्योर हो सकती है, पॉजिटिविज्म की तरफ ज्यादा जा रहे थे, क्वांटिटेटिव की तरफ जा रहे थे ज्यादा। देन बिल्कुल उनके ऑपोजिट थ्योरी देने वाले आए एम्पिरिसिज्म। इट मीन्स इस एक जो नॉलेज पहले निकल चुकी है, अगली नॉलेज उसके बिल्कुल ऑपोजिट आ रही है। देन देयर इज अनदर थर्ड वे, और थर्ड वे ये है कि इन दोनों नॉलेज को इकट्ठा कर दिया गया, इसीलिए स्पिनोजा जी को कॉपरनिकस कहा गया है। हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट दिस टर्म? अगर नहीं तो अभी आपको पता, देखो मैं चैट देख रही हूँ साथ साथ, सो जस्ट राइट डाउन इफ यू कैन रिकॉल कि भाई हाँ, एक नॉलेज आ रही है रैशनल, यस यू कैन टाइप रेस्ट, यस। दूसरी आ रही है आपकी उसकी ऑपोजिट इम्पेरिकल, एंड देन उन दोनों को कंबाइन करके आपका कौन सा आ रहा है, फिर कंबाइन करके आपका उन दोनों का मिक्स आ रहा है, जिसके अंदर इम्पेरिकल और रैशनल दोनों को मिक्स करके आइडियलिज्म की रिसर्च निकाली गई, ठीक है, आइडियलिज्म। ओके, सो देन देयर इज यस वेरी गुड नैन पॉपुलेशन गैप। कुछ रिसर्चेस आउट ऑफ इंडिया हुई है,
एंड देयर आर सर्टेन रिसर्चेस जो कि हमें लगता है कि इंडिया में इसका स्कोप अभी है। कुछ रिसर्चेस इंडिया में भी हो चुकी है एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी में, हम लोग इंडिया में ही अनदर रिसर्च भी करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिफरेंट पॉपुलेशन को ले सकते हैं। कुछ रिसर्च ओनली अर्बन एरिया में हुई है, हम सोचते हैं कि अब रूरल में कर दें। तो फ्रेंड्स पहले देखो, मान लो अर्बन में हुई, फिर वो रूरल में हुई, फिर हम क्या कह सकते हैं, हम दोनों का कंबाइन करेंगे जी अब रिसर्च में। सो इस तरीके से हम गैप को फाइंड कर सकते हैं, दोनों का मिक्सचर कर सकते हैं। तो हमेशा ये 3 टाइप ऑफ नॉलेज हर एक कॉन्टेक्स्ट में आप फाइंड करने की कोशिश कर सकते हैं। आज फ्रेंड्स इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड यू आर एंगेजिंग, मैं आपको प्रॉपर सॉफ्टवेयर्स के थ्रू भी सिखाने की सोच रही हूँ कि कैसे हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं। यू वांट टू डू दैट, है ना? बिल्कुल, प्लीज बी इंटरेक्टिव सो दैट यस हम लोग उस चीजों को भी करें। बिकॉज मुझे दिखेगा कि हाँ हम लोग बहुत इंटरेक्टिव है, तभी कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम अदरवाइज पेड में रखते हैं। लेकिन आपके साथ एक मौका मिला है इतने सारे लर्नर्स के साथ जुड़ने का यूनिवर्सिटी के, तो श्योरली आई वांट कि आप सबके साथ शेयर किया जाए, बिकॉज ये हमारी एक पर्सनल मीटिंग है जी। सो फ्रेंड्स सबसे पहले तो पीएचडी के लिए हमें जो लिटरेचर रिव्यू करना है तो वो कैसे करना चाहिए। जॉब ऑफ पीएचडी थीसिस लिटरेचर रिव्यू इज टू एक्सप्लेन व्हाट हैज बीन डन, मतलब हमारा जो टॉपिक है उसमें ऑलरेडी क्या किया जा चुका है। यार लिटरेचर रिव्यू ऐसी चीज है जिसपे हमारा पूरा पीएचडी थीसिस स्टैंड करेगा। पीएचडी थीसिस स्टैंड करेगा मतलब ये हमारा बेस बनेगा हर चीज का। तब तक हम अपने थीसिस लिख ही नहीं सकते जब तक ये जो बेस है वो तैयार नहीं है पीछे से, ठीक है। तो पता है नॉलेज कितनी सारी है लाइफ में, दुनिया में। हम लोग अगर अपनी पीएचडी करेंगे तो हम उसमें एक चीनी के दाने के भी छोटा पार्ट के जितना कुछ डाल पाएंगे। इतने बड़े समुद्र में हम एक बूंद भी नहीं पूरी डाल पाएंगे, छोटा सा पार्ट हम कर पाएंगे। लेकिन हमारी पूरी पीएचडी 3 to 5 years की इस बूंद की दुनिया में घूमेगी। मतलब हमारी पूरी पीएचडी उस बूंद को, उस ड्रॉप को क्लियरली डिफाइन करने में लग जाएगी। सो दिस इज हाउ वी आर इम्पार्टिंग इन लाइफ, इन लिटरेचर। सो मीन्स जो सबसे पहले हो चुका है पहले हमें वो समझना पड़ेगा कि क्या हो गया है, एंड देन हु आर द की ऑथर्स, और उन की ऑथर्स के बारे में भी हमें अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जैसे ही हम डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मेक श्योर कि उस पूरे डाटा को एक जगह साथ में फोल्डर बना के डालते रहिए, बिकॉज आपको नहीं पता कहाँ पे किसकी साइटेशन देने की नीड पड़ जाए, ठीक है। तो जो भी हम लिख रहे हैं ना साथ साथ उसके साइटेशंस भी रेडी करते रहेंगे। मैं आपको आज सॉफ्टवेयर के थ्रू वो भी सिखाने वाली हूँ। जोटेरो या मेंडले आता है आप सबको? हाउ मेनी ऑफ यू नो जोटेरो या मेंडले का सॉफ्टवेयर चलाना रेफरेंस राइटिंग के लिए? यस, यस और नो? यू जस्ट टाइप, यू डू नॉट नो, नो यू वांट टू लर्न नाउ। ठीक है, मैं आज आपको सिखाऊंगी जी। सो फ्रेंड्स देन इसके बाद मेन हाइपोथेसिस उन लोगों ने सिखाए हैं, डिफरेंट हाइपोथेसिस। ऑलरेडी जो लिटरेचर हम रिव्यू करते हैं उन लिटरेचर रिव्यू में कैसे हाइपोथेसिस बनाए गए हैं हमें वो भी लिस्ट डाउन करने होंगे, वो भी अपने दिमाग में सेट रखना पड़ेगा। मैंने इतनी लिटरेचर पढ़ी, उनमें उन्होंने ये वाले हाइपोथेसिस क्रिएट किए थे, ठीक है जी। सो मेन थीम क्या है जो कि उस लिटरेचर में एग्जिस्ट करती है, एंड गैप्स वीकनेस भी फाइंड करेंगे हम। अब जो गैप है फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं, दूसरे रिसर्चेस पढ़ रहे हैं, उसमें गैप कहाँ मिलता है? एक तो इंट्रोडक्शन पार्ट में ये मिलता है कि ये रिसर्च ने क्या किया। हाँ गैप प्लीज आप बता रहे थे। सजेशंस में और उनके वो नीचे दिए रहते हैं कि और भी एरिया कौन से हैं जहाँ पे फर्दर स्टडी की जा सकती है। वेरी गुड, सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस दिए होते हैं, तो वहां पे आपको रिसर्च के गैप मिलते हैं, ठीक है। तो उन गैप्स के थ्रू आपने क्या करना है, सारे के सारे गैप्स फाइंड करने हैं एक जगह पे, फिर उन सबको एनालाइज करना है। अरे यार ये गैप अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, पूरा न्यू से न्यू रिसर्च भी देखनी है, क्या वो गैप अभी भी आ रहा है न्यू रिसर्चेस में भी। सो यहाँ हमें चांस मिलता है कि अपनी रिसर्च को टाइटल को डिफाइन करने का, रिफाइन करने का। जब हम बहुत सारे लिटरेचर रिव्यूज कर लेते हैं ना तब जाके हमारा जो टॉपिक है वो सही से सेट होता है। पहले तो सिर्फ मुझे ओवरव्यू है कि हाँ मुझे इस एरिया में रिसर्च करना है, ठीक है, उसमें क्या करना है ये तो लिटरेचर रिव्यू के बाद ही आएगा। यस और नो?
यू जस्ट टाइप yes और no. यस, बी इंटरेक्टिव, बहुत मजा आने वाला है। बस एक दो स्लाइड्स के बाद हम प्रैक्टिकल नॉलेज में जाने वाले हैं आज जी। सो फ्रेंड्स, पर्पस क्या समझ में आया? जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट है वो हमने पढ़ा लिटरेचर रिव्यू में। गैप्स कौन कौन से हैं, फाइंड किया कौन कौन से अदर पीपल हैं जो इस पर्टिकुलर काम में वर्क कर रहे हैं। मेजर सिमिलर वर्क ढूंढे आपने कि इसमें भी यही किया, इसमें भी यही किया, इसमें भी किया है। आपके दिमाग में खुद में भी आएगा कि यार ये टॉपिक मिसिंग लग रहा है, फिर सर्च करो पहले, सच्ची में मिसिंग होगा नहीं, वो हो सकता है किसी ने किया हो। ठीक है, गूगल स्कॉलर पे सर्च कर सकते हैं हम, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं आपको बताती हूँ अभी। देन आइडेंटिफाई कि उन लोगों ने मेथोडोलॉजी कौन सी यूज की थी, मेन आइडियाज उनके क्या थे, कि क्या वो बताना चाहते हैं। देन आपकी खुद की रिसर्च के बारे में आपको एक आइडिया लगेगा, अब आपका आइडिया जगेगा, नाउ यू विल गेट योर आइडिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रीवियस रिसर्चेस का यूटिलाइजेशन करेंगे, ये हमारा मेन काम है कि व्हाई वी आर डूइंग लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, तो बेसिकली लिटरेचर रिव्यू में तो अभी मैंने यही समझाया। अब मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि लिटरेचर रिव्यू करने के कौन से 3 मेथड्स होते हैं। एनीवन, चलो एक आधा ही बता दो पहले, लिटरेचर रिव्यू करने का मेथड कोई सा भी एक बोलो, डरो मत, हाँ, सब साथ ही हैं। नहीं, अच्छा एक शुरुआत कर दूं मैं, फिर दूसरा आप बताओगे। एक मैं बता देती हूँ, एक हम बिब्लोमेट्रिक्स कर सकते हैं, बिब्लोमेट्रिक्स कर सकते हैं, बिब्लोमेट्री एनालिसिस कर सकते हैं। अब 2 और बचे हुए हैं, शॉर्ट फॉर्म में बता दो कुछ आइडिया। लिटरेचर रिव्यू करने के 3 मेथड्स बहुत प्रोमिनेंट है। एक तो बिब्लोमेट्रिक एनालिसिस कर सकते हैं, मैं बता दूं फिर। दूसरा हम कर सकते हैं SLR। SLR क्या ना, पढ़ा तो होगा सबने, पता नहीं है, बोल नहीं पा रही, किसको पता था? पता था आपको SLR, स्ट्रक्चरल लिटरेचर रिव्यू? चलो कोई बात नहीं, पता होगा मुझे लग रहा है आपको, आपने ध्यान नहीं आया अभी। एक और लास्ट मैं बताती हूँ, मेटा एनालिसिस। सो ये 3 सबसे मेन तरीके हैं। मेटा पता था, कुछ तो पता होगा, बिब्लोमेट्रिक्स, SLR, मेटा एनालिसिस। एनीवन जो आपको पता था अभी याद नहीं आया था, अब याद आ गया? ओशीन बोलना चाह रही है, हाँ मैम मेटा एनालिसिस याद आया था। जी जी जी, पता था कुछ ना कुछ, बस चलो कोई बात नहीं, अब हम उसके आगे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के जो सेशन है मैं आपको 2 एनालिसिस तो बता दूंगी अच्छे से। ठीक है, मतलब ये 2 टाइप के एनालिसिस अब कर पाओगे आप। एंड मेटा एनालिसिस क्योंकि एक बहुत अपनी आप में बहुत बड़ी चीज है वो। ठीक है, तो एक बिब्लोमेट्रिक्स भी वैसे बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है, लेकिन एक ऐसा ओवरव्यू जरूर हो जाएगा कि आप अपनी लिटरेचर रिव्यू करना चालू कर दो। एंड मैं SLR भी दिखाऊंगी आपको प्रॉपर एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो बिब्लोमेट्रिक एनालिसिस एंड SLR, तो कौन सा वाला पहले करना चाहोगे आप? बिब्लोमेट्रिक्स। अच्छा जी। सो फ्रेंड्स, बिब्लोमेट्रिक एनालिसिस के लिए सबसे पहले आपको जो लिटरेचर्स होते हैं ना, उनको इकट्ठा करना होता है। बिब्लोमेट्रिक होता है क्या, मैं समझा देती हूँ। बिब्लोमेट्रिक एनालिसिस एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, जो कि मैथमेटिकल जिसको कह सकते हैं, क्वांटिटेटिव है। इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ लिटरेचर्स को एक साथ अगर हमें रिव्यू करना है तो यूज कर सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ लिटरेचर्स को एक साथ रिव्यू करने के लिए यूज कर सकते हैं बिब्लोमेट्रिक्स को। ये एक तरीके से क्वांटिटेटिव है। टाइप कीजिए प्लीज चैट पे, बिब्लोमेट्रिक क्वांटिटेटिव है, हरी अप। एंड इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ लिटरेचर्स को एक साथ हम रिव्यू कर सकते हैं जी। भाई पता चले ना सच्ची में बिब्लोमेट्रिक पढ़ना है आपने, टाइप यस। सो फ्रेंड्स, इसके अलावा हम लोग बिब्लोमेट्रिक एनालिसिस कर सकते हैं। पहले हम लोगों को स्कॉपस का कोई डाटा चाहिए होगा। ठीक है, आपके यूनिवर्सिटी में अगर स्कॉपस का एक्सेस है, या फिर आपके इंडिविजुअल मेंटर्स के पास भी होता है, ग्रेट ओशीन, हाँ जी, तो उससे भी हम लोग स्कॉपस का डाटा ले सकते हैं। क्वांटिटेटिव है, वी कैन रिव्यू लार्ज नंबर ऑफ लिटरेचर्स। वेरी गुड गौरव जी जी। सो फ्रेंड्स, अदरवाइज अगर आपके पास स्कॉपस का एक्सेस अभी नहीं है तो हम एक छोटे से स्केल पे
मैं दूसरा एक्सेस भी बता दूंगी कैसे ले सकते हैं, बट उसमें ना सारे ऑप्शन ओपन नहीं होते, थोड़े थोड़े ऑप्शन ओपन होते हैं। जो फ्री वाला होता है ना, हम लोग घर बैठे कर सकते हैं उसमें। और जो स्कोपस का अगर डाटा होता है तो उसमें फुल ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। मैं आपको, मेरे पास स्कोपस वाला डाटा भी है, उससे भी करके दिखाऊंगी आपको, ठीक है। तो आप नोट डाउन अभी कर लो, उसके बाद आप ट्राई जरूर करना, और मैं आपको, हाँ जी, एक फीडबैक फॉर्म भी दूंगी, उस फीडबैक फॉर्म को भी फिल कर लेना। और मुझे आप बाद में कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो अगर कहीं पे भी किसी भी प्रॉब्लम आई टॉपिक में, या एसएलआर आपसे नहीं बन रहा है, ठीक है, तो उसको करने के लिए जी। सबसे पहले तो अगर स्कोपस का डाटा है तो उसके लिए स्कोपस की वेबसाइट पे जाते हैं, उसमें अपने टॉपिक के कीवर्ड्स लिखते हैं, ठीक है। अब कीवर्ड्स लिखे, कोमा कोमा डालोगे तो वो स्कोपस अपने आप ही उसको एंड कर देगा। अब अगर मुझे सर्च करना है ब्रांड वैल्यू, मान लो, तो ब्रांड वैल्यू की जगह किसी रिसर्च में ये भी लिखा हो सकता है ब्रांड्स वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग क्या चाहते हैं, ब्रांड भी ढूंढे को वो, और ब्रांड्स भी ढूंढे। तो ब्रांड और ब्रांड्स ढूंढने के लिए ब्रांड टाइप करेंगे हम, और उसके साथ और ब्रांड्स भी टाइप करेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे ये दोनों वाले चाहिए। अगर मुझे चाहिए कि सिर्फ ब्रांड वैल्यू, तो खाली ब्रांड वैल्यू लिख दिया, लेकिन इससे क्या होता है, हमारी रिसर्च ना नैरो हो जाती है, समझ गए। हमें चाहिए कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो हमने और डाल दिए, यानी कि इसके जैसे मुझे देखना है स्टार्टअप, कोई स्टार्टअप लिखता है, कोई स्टार्ट गैप अप लिखता है, ठीक है, तो कोई स्टार्टअप्स लिखता है साथ साथ, कोई उसमें स्लैश डालता है, मुझे सारे चाहिए, तो मैं उसमें जो भी स्पेलिंग है उसके साथ और डालूंगी, ठीक है, कि मुझे ये भी चाहिए। सो कॉमा डाल के फिर स्टार्टअप और उसके साथ और क्या क्या सर्च करना है वो सब। अब पहले मैं आपको जो मैंने ओपन किया हुआ है पेड वाला, मतलब पेड इन द सेंस कि अगर आपके यूनिवर्सिटी में स्कोपस का एक्सेस है कि नहीं, आप उस हिसाब से बता दो, मैं सीधा वही गाइड कर दूंगी, क्योंकि कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है। मेरी यूनिवर्सिटी में भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं था, मेरे को लेना पड़ा। हाँ जी, है कि नहीं? नहीं है, ठीक है। नॉलेज नहीं है अभी तक हम लोग अच्छा, को अभी इस आपको बारे में। पता नहीं है, कोई बात नहीं। वो क्या होता है कि कई बार आपके मेंटर्स के पास होता है एक्सेस, तो उनकी आईडी से ले लेते हैं हम लोग, या फिर हम लोग किसी लाइब्रेरी को ज्वाइन करते हैं, तो उस लाइब्रेरी में जाके भी हम स्कोपस से एक दिन जाते हैं, अपना डाउनलोड कर लेते हैं डाटा, और फिर अपनी रिसर्च बाद में आराम से करते रहते हैं। ये मेथड होता है, ठीक है जी। सबसे पहले मुझे एक सेकेंड, तो एक बार ये फॉर्म मैं बस आपके चैट में डाल दूँ ताकि मैं बाद में भूल ना जाऊँ। बस ये फॉर्म आप बाद में जरूर फिल कर देना सबके साथ, ठीक है। और हाँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि जैसे स्कोपस का कुछ डाटा है वो मैंने पहले से ना डाउनलोड करके रख लिया। तो ये डाटा एक्सेल में खोलेंगे तो ऐसा दिखता है, ठीक है। यहाँ पे ऑथर नेम, ऑथर्स, टाइटल, ईयर, सोर्स, वॉल्यूम, इशू, मतलब ये सब मैंने कुछ नहीं करना। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? वी डू नॉट नीड टू डू एनीथिंग। ये सब आप जब डाउनलोड करते हो ना, डाउनलोड एक्सेल फाइल या सीएसवी फाइल, तो ये अपने आप आता है, ठीक है। उसमें से डाउनलोड सीएसवी फाइल अपने आप आता है। मैंने सिर्फ अपना एरिया डाला था उसमें कि मुझे क्या चाहिए वो, और ये मैं जिस एरिया पे अभी काम कर रही हूँ ये वो वाला एग्जैक्टली नहीं है, ताकि कॉपी पेस्ट मतलब अभी ना हो जाए, क्योंकि उस पर काम कर रही हूँ, मेरी भी खुद की आरडीसी चल रही है इसलिए, ठीक है। तो मैंने थोड़ा अलग डाटा डाउनलोड करके आपके लिए रख लिया, ओके। जो डाटा डाउनलोड किया, अब आप डाउनलोड करोगे, अपने अपने लैपटॉप्स होंगे आपके साथ या यूनिवर्सिटी का यूज कर सकते हो, उसमें डाउनलोड करोगे वॉस व्यूअर, ठीक है। तो आपने ऐसे ही वॉस व्यूअर गूगल पे सर्च मार लेना है, ठीक है, वॉस व्यूअर, इसके ऊपर क्लिक करना है और इसमें से डाउनलोड कर सकते हो वॉस व्यूअर को, ठीक है जी। मैं आपको करके दिखा दूं क्या? वैसे मैंने डाउनलोड किया हुआ है। इस पे क्लिक करोगे ना तो आपका विंडो सिस्टम आ जाएगा, तो विंडोज है तो विंडो, मैक है तो मैक वाला डाउनलोड कर लिया। उसके बाद उसको रन करना तो आपको आता है, जो भी कहेगा नेक्स्ट नेक्स्ट करके फिनिश कर देना, हो जाएगा, ठीक है। अब मैं वही देख रही हूँ कि मेरे यहाँ पर वॉस व्यूअर है तो सही, कहाँ गया? ओपन था, ओके, सर्च कर रही हूँ वॉस व्यूअर। आई थिंक मैंने बंद कर दिया, या तो ये बाय कहेगा, बाय नहीं करना, ठीक है। ये डाउनलोड करना है और इस पर क्लिक करके खोलना है, तो खुल जाएगा, ठीक है जी। तो ऐसा करना है, इसमें कुछ खरीदना नहीं है, उसको बंद कर देना, फ्री है ये,
ओके मैम। तो हो जाएगा ओपन। कहाँ गया? तो टैब ज्यादा खुले हुए ना इसलिए दिखता भी नहीं है, कहाँ चला गया? हाँ वो अपने आप ओपन हो गया, ठीक है। तो ऐसा करके आपका वॉच व्यूअर ओपन हो जाएगा। आई होप यू कैन सी दिस। मैं साथ साथ आपको भी देख रही हूँ, कभी आपके फेसेस से ना क्लियर हो जाती चीजें। यस, दिख रहा है जी सबको? यस मैम। ग्रेट। तो यहाँ पे हमने क्लिक करना है, वॉच व्यूअर ओपन हो जाएगा। क्रिएट, क्रिएट के बाद आप क्रिएट मैप बेस्ड ऑन बिब्लियोग्राफिक डाटा पे क्लिक करेंगे, सेकंड वाला नंबर, ठीक है। इस पे क्लिक किया। नेक्स्ट, फर्स्ट वाला ही है, रीड डाटा फ्रॉम बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस, फर्स्ट पे ही क्लिक करेंगे। फिर नेक्स्ट, फिर क्वेश्चन पूछेगा वेब ऑफ साइंस का डाटा है कि स्कोपस का। तो स्कोपस के डाटा में क्लिक करके अपनी अब इसमें फाइंड करेंगे ना हमने कहाँ डाला है, मैंने रिसर्च में डाला था। इसको ओपन करूंगी। अब इसमें से मुझे स्कोपस का डाटा चाहिए, मैंने स्कोपस का ले लिया। अब मैं नेक्स्ट करूंगी। वो रीड कर रहा है फाइल, फाइल बहुत बड़ी है, वो फाइल को रीड कर रहा है। यहां तक स्टेप्स आपको समझ आ गए। अब अगर मैंने स्कोपस का डाटा लिया, इस वजह से इसके अंदर सारा डाटा विजिबल है, मतलब ये सारे ऑप्शन काम कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे ऑप्शन काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप स्कोपस का नहीं तो मैं दूसरा मेथड बताऊंगी, फ्री वाला, वो डालोगे तो उसमें सारे ऑप्शन काम नहीं करेंगे, उसमें सिर्फ को ऑथरशिप वाला और ऑथर वाला काम करेगा, डायरेक्ट या कंट्रीज वाला, ठीक है, मतलब फर्स्ट वाला ही वर्क करेगा। ये फर्क है बस। सो यहाँ पे को ऑथरशिप में क्लिक करके मैं आपको दिखाती हूँ कि इधर ये पता चलेगा कि कितने ऑथर्स ने मिनिमम नंबर, कितने ऑथर्स के डॉक्यूमेंट, उस ऑथर के कितने डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे कम ज्यादा भी कर सकते हो अपनी इच्छा अनुसार। जब मैंने सिर्फ 2 पेपर्स उसके अवेलेबल है तो किया, तो यहाँ पर आप देख रहे हो 20 आ गए मेरे पास ऑथर के नाम। जब मैं ज्यादा बढ़ा रही हूँ तो हो सकता है कम आ, क्योंकि मेरा डाटा छोटा है ना अभी। अब मैंने इसको नेक्स्ट किया, देन नेक्स्ट किया। नंबर ऑफ ऑथर कितने सिलेक्ट करने हैं? 5, 4, 2, अभी इसने 5 सिलेक्ट किए, फिनिश कर दिया। तो ये हमें क्या दिखा रहा है? ये हमें दिखा रहा है कि इतने सिर्फ 5 ही ऑथर्स हैं और इन दोनों ऑथर्स ने दोनों के साथ साथ मिलकर काम किया है, ऐसा। तो यहाँ पे क्या दिखाया कि कौन कौन से ऑथर है जिन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया है, ये को ऑथरशिप ये होती है। देन दोबारा से मैं कुछ और सर्च करना चाहूंगी, सेम प्रोसेस में आगे गए और मैं देखती हूँ बिब्लियोमेट्रिक कपलिंग, बिब्लियोग्राफिक कपलिंग। बिब्लियोग्राफिक कपलिंग में मैं किसकी कपलिंग आपस में कराना चाहती हूँ? डॉक्यूमेंट्स की, सोर्सेज की, ऑथर्स की। तो अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की कपलिंग करवाऊं तो साइटेशन कितनी होनी चाहिए? कम से कम एक बंदे ने तो साइट किया है उस रिसर्चर को। ऐसे करके हम इसके डाटा को डिफाइन भी कर सकते हैं। मैं कह रही हूँ 4 लोगों की साइटेशन आई हुई होनी चाहिए मान लो, ये कम ज्यादा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खेल सकते हो इसके साथ। नेक्स्ट, 63 का कपलिंग करने वाला है ये कहता है इतने सारे रिसर्चर्स के डॉक्यूमेंट्स के अंदर। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, अभी जूम तो नहीं हो पा रहा है, जैसे कि फर्स्ट वाले ऑथर है उनको साइटेशन मिली है 24, लेकिन उनकी लिंक की जो स्ट्रेंथ है, इंपॉर्टेंस है, वो 341 है। मतलब उनकी लिंक, उनका बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, इंपॉर्टेंस है उसके रिसर्च की। ऐसे सेकंड वाले को साइटेशन मिली 222, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ फर्स्ट वाले के स्ट्रेंथ से कम है। तो ऐसे इन्होंने बिब्लियोग्राफी की कपलिंग करके दिखा दी। आप चाहो तो इस डाटा को सेव भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कॉपी करके इस आगे पीछे भी कर सकते हो। सेव करने का ऑप्शन होता है, सिलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट। हाँ जी बोलिए। मैम इसमें टोटल लिंक स्ट्रेंथ का क्या मतलब है कि लोग उसको अपना रिव्यू कर रहे हैं? नहीं, साइटेशन तो साइटेशन होगा वो कि मैंने उनकी रिसर्च पढ़ी और उनके रिसर्च को अपनी रिसर्च में लिखा, ठीक है। स्ट्रेंथ तो हो गई उनकी इंपॉर्टेंस, कि वो कितनी वैल्यू रखती है, उसके अलावा इंपॉर्टेंस भी चीज होती है, ठीक है। ओके मैम, यस। तो फिनिश कर दिया हमने। अब वो कहता है कि 63 आइटम है, इसके अंदर कुछ रिपीट हो रही है, तो 61 का डाटा दूं कि 63 पूरे का दूं? तो मैंने कहा हाँ ठीक है 61 का दे दो। तो यस पे क्लिक कर दिया। तो ये देखो ये प्यारा सा चार्ट बन गया। कभी भी आप लिटरेचर रिव्यू करते हो, क्या आपने ऐसे डायग्राम्स देखे हैं किसी की लिटरेचर में? अरे यार होते हैं। आपने फिर लिटरेचर रिव्यू नहीं किया अभी शुरू, कोई बात नहीं, करो। दूसरे रिसर्चर्स को पढ़ोगे तो उन्होंने अपनी रिसर्च में प्यारे प्यारे डायग्राम डाले होंगे, हमने कुछ नहीं किया। क्या किया? ऐसे ऐसे क्लिक किया, आ गया डायग्राम, ठीक है। तो इसमें ये दिखा रहा है यहाँ पर कि इस
रिसर्चर का इसके साथ, इस रिसर्चर का इसके साथ जो बिब्लियोग्राफी है वो मैच कर रही है, मतलब कुछ कीवर्ड्स, कुछ टाइटल्स जिस पे इन्होंने काम किए हैं वो इनके मैच कर रहे हैं। और आप जब अपनी रिसर्च लिखोगे और आपको लगता है कि मैंने ये सारी रिसर्चेज यूज की है और कुछ रिसर्च पेपर आप बिब्लियोमेट्रिक डाटा के बेसिस पे पब्लिश कराना चाहोगे तो भी आप इससे करवा सकते हो, उसमें ये दिखा सकते हो फोटो। अब दिखाओगे कैसे, उसके लिए ऑप्शन है सेव करने का, सेव कर सकते हो आप, सेव मैप। हाँ नहीं, मेरे को याद आ गया, स्क्रीनशॉट पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, इसके स्क्रीनशॉट कहाँ रखना है फिर उसको ले सकते हो। ठीक है, अभी मेरे को नहीं लेना, मैं नहीं ले रही, स्क्रीनशॉट से ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट आ जाएगा, अपनी रिसर्च में दिखा सकते हो इसको जी। और भी बहुत कुछ कर सकते हैं आप, अपने आप खेल लोगे वो जिससे, फिर मैं नेक्स्ट मेथड दिखा देती हूँ। मतलब ऐसे को साइटेशन कर सकते हैं हम, और मतलब ऐसा होता है कि किसी की रिसर्च इतनी अच्छी है कि सबने ही साइट कर रखी है उनकी बिब्लियोग्राफी में, ठीक है, को साइटेशन पे भी क्लिक कर सकते हैं, रेफरेंसेस से, साइटेड ऑथर से, रेफरेंस से भी कर सकते हो। ऐसे ही सभी के डाटा आपको मिल जाएंगे कि ऐसी कौन सी रिसर्च है जो कि ज्यादातर सबने कम लिखी हुई है किसी और की। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आज की डेट में कोर कॉम्पिटेंसी के बारे में सोचूं किसी कंपनी की, तो वो सीबी गुप्ता जी ने दी थी। अब आप देखोगे जितनी भी रिसर्च है ज्यादातर सीबी गुप्ता जी ने इतनी सारी, हाँ सीबी गुप्ता जी फेमस फॉर सीएसआर, सीएसआर के लिए फेमस है वो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा यहाँ ये रहे, ये तो सीबी गुप्ता जी नहीं, भट्टाचार्य, ये रहे, हाँ मिल गए मिल गए। अरे भाई आप देखोगे फिर जब लिटरेचर रिव्यू करोगे तो जितनी भी रिसर्चेज होंगी, ये तो ऑथर है, मैं सीधा इनकी साइटेशन पे आती हूँ, ये ऑथर के कीवर्ड इंडेक्स सब होगा, अफिलिएशन, एब्स्ट्रैक्ट की, ऑथर्स की इंडेक्स की, वर्ड्स, यहाँ पे होगा एक साइटेशन का ऑप्शन, ठीक है। तो हाँ साइटेड, ये तो साइटेड बाय है, तो यहाँ पे अगर साइटेशन का एक ऑप्शन होगा देखना, उसमें सीबी गुप्ता जी का बहुत नाम होगा, सीबी भट्टाचार्य, गलती से मैं वो बोल देती हूँ गुप्ता, ये रहा, मिल गया रेफरेंस, हाँ ठीक है। जब आप इनके रेफरेंस में जाओगे तो आपको एक का नाम ज्यादा दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है, अकेर, अकेर जी का नाम ज्यादातर लोगों ने लिखा हुआ है अपनी साइटेशन में, इज इट विजिबल टू यू, ये रहा, ठीक है। दूसरा भट्टाचार्य जी का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, सीबी भट्टाचार्य जी, ये चीज आप मैन्युअली करते कितना मुश्किल था, अगर इनको बाकी ऑथर्स का भी फाइंड करना है तो ये चीज मेरे सॉफ्टवेयर ने 1 सेकंड में दिखा दी है। आप देखो यहाँ पर भट्टाचार्य जी का कितना बिब्लियोग्राफी लोगों ने यूज किया हुआ है, ऐसे कैलर की भी बहुत की होगी, वो नोटिस हमारे में नहीं आया, इसने सॉफ्टवेयर ने कर दिया, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस एंड डिफरेंट के आपस में कपलिंग आप करवा सकते हो, ठीक है। तो बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस, इसके अलावा ये तो वॉस व्यूअर का है जो वेरी इजी है, यू कैन डू एंड यू कैन पब्लिश योर पेपर ऑल्सो, ठीक है। एक और होती है हमारी आर सॉफ्टवेयर को यूज करके, जिसमें हम बिब्लो शाइनी का यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आर सॉफ्टवेयर तो नहीं सिखाऊंगी कि उसमें बहुत सारी चीजें हैं बिब्लो शाइनिंग का यूज करने के लिए, लेकिन आप इसको भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ये भी बहुत प्यारा सॉफ्टवेयर है। अब फ्रेंड्स लिटरेचर रिव्यू करने के लिए अगर मेरे पास किसका एक्सेस नहीं है, स्कोपस का, मैं स्कोपस की जगह पे एक और है हैडजिंग पब्लिश एंड पैरिश सॉफ्टवेयर, मैं पीछे से वॉस व्यूअर हटा देती हूँ, ठीक है। तो ये एक सॉफ्टवेयर है लिटरेचर रिव्यू करने के लिए, जब हमारे पास स्कोपस नहीं होता तो हम ये फ्री सॉफ्टवेयर का काम यूज कर सकते हैं। पब्लिक आप यूज लिखोगे ना, गूगल पे सर्च मारोगे HARZING पब्लिश एंड पैरिश, ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है। सो इसको डाउनलोड करके इसमें आप अपने हिसाब से सर्च कर सकते हो, तो मैं चाहती हूँ गूगल स्कॉलर से सर्च करूँ। अब आप सर्च क्या करना चाहते हो, सबसे आसान होता है कीवर्ड से सर्च करना, ठीक है। तो कीवर्ड में आप कोई से भी कीवर्ड बता दो, एक दो बच्चे कोई कुछ बता दो, कोई कुछ कि किस एरिया में आप रिसर्च करना चाहते हो। मैम इन्वेस्टमेंट्स। ओके अच्छा, इन्वेस्टमेंट किस में, मैम वुमेन्स बिहेवियर ऑफ इन्वेस्टमेंट। वुमेन बिहेवियर, ठीक है। चलो अभी मेरे पास सिर्फ यही वाला डाटा दिया, अब ये इसके अलावा और भी कुछ कॉमा में डाल सकती थी कि ये सारे कीवर्ड होने चाहिए, ठीक है।
तो इतने को ही मैं सर्च करके देख लेती हूँ। अब यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू एक साथ में लिटरेचर्स आ जाते हैं आपके पास। तो अभी ये ढूंढ रहा है 60, 70, 80, 100, ठीक है, 1000 तक आएंगे यहाँ पर रिजल्ट। अब मैं स्टॉप कर देती हूँ, छोटा से पे ही आ ही रही है, जल्दी फास्ट हो रहा है तो करने दो इसको। इतने सारे लिटरेचर इसने गूगल स्कॉलर से ढूंढ लिए इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। कभी कभी आपको वो भी देता है कि पहचानो कौन सा ट्री है, गूगल वाला ना, गूगल का जो कोड फाइंड करना होता है जिसमें कभी कभी वेरिफिकेशन के लिए, तो उस पर भी क्लिक करके फाइंड कर सकते हैं। अभी तो करे जा रहा है आपके सामने, मैं अकेले करती हूँ इससे सॉल्व, तो दे देता है मेरे को सॉल्व करने को पजल गूगल की। ओके, सो इतने सारे डाटा हमारे पास आ गए, पूरे 1000 करके मानेगा लगता है, कर दिए उसने। अब क्या करूं, अब आप ये कर सकते हो, कॉपी रिजल्ट पे क्लिक करेंगे फिर, ठीक है। तो कॉपी रिजल्ट पे क्लिक करने के बाद CSV विद हेडर या एक्सेल विद हेडर के रूप में आप कर सकते हो, ये ज्यादा बेटर है। कॉपी के अंदर जाके एक्सेल विद हेडर। अब आपने एक एक्सेल पकड़ना है कोई सा भी, वैसे ये मेरे पास ऑलरेडी है, मैं इसी के साथ एक और शीट ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे कॉपी कर लिया उसने, पेस्ट कर देना है, ये रहा डाटा। ये मेरे पास कॉपस नहीं है तब भी आ गया, देखा। वो इससे पहले वाला मैंने स्कॉपस से सच्ची में लिया हुआ था, अब ये वाला जो डाटा है ये मेरा इससे आ गया। आप न्यू एक्सेल शीट खोलना, न्यू एक्सेल शीट में इसका डाटा सबसे ऊपर में लिख के पेस्ट कर देना। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। तो अब आप क्या करोगे, जब आप देख रहे हो वुमेन एंड रिस्क एनालिसिस ऑफ एटीट्यूड ऑफ इन्वेस्टमेंट बिहेवियर, यही फाइंड करना चाह रहे थे आप, यस। तो ऐसे ही बहुत सारे लिटरेचर्स के आ गए। अब इनकी लिटरेचर को पढ़ने के लिए आप मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप 2019, 20 मतलब पिछले 5 सालों का लो ज़्यादा, इसमें तो 1000 आगे हमें हमारे काम के नहीं है सारे, हमारे काम के हैं 19, 20, 17 लेटेस्ट वन। अब आप सर्च कैसे करोगे इन आर्टिकल्स को, आर्टिकल का URL दिया हुआ है, तो गूगल पे जाके इसको डाल के आप उन आर्टिकल को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में एक्सेस है तो आपका इजीली डाउनलोड हो जाएगा। किसी किसी में एक्सेस नहीं होता तो कुछ फ्री भी होते हैं, या फिर स्काई हब का भी यूज कर लेते हैं। वैसे स्काई हब इज नॉट ऑफिशियल बट स्टिल SCIHUB, वहां से क्रैक वर्जन डाउनलोड हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है इनके, तो उनको डाउनलोड करके उन PDF को पूरा पूरा पढ़ सकते हो आप, ठीक है जी। तो फिर इसी को आप इस वॉस व्यूअर में डाल के सर्च कर सकते थे, पर वही मैं कही थी कि अगर इसको सर्च करोगे, स्कॉपस वाला ही क्लिक करना फिर भी, तो सारे ऑप्शन ओपन नहीं होंगे, 1 या 2 ऑप्शन ओपन होंगे, एटलीस्ट वो कर सकते हो आप। कुछ ना से तो अच्छा कुछ तो कर सकते हैं हम, है ना। नहीं तो हम आसपास पूछेंगे कि इस यूनिवर्सिटी में एक्सेस है स्कॉपस का, वहाँ की लाइब्रेरी का एक्सेस कर या किसी की हेल्प लेके भी डाउनलोड करवा सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज लिटरेचर रिव्यू फ्रॉम बिब्लोमेट्रिक्स। सो आप अपना भी फीडबैक दे सकते हो, हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड फ्रॉम दिस जी, सो दैट हम आगे बढ़े आगे। मैम बहुत कुछ समझ में आ गया कि लिटरेचर रिव्यू एक्चुअल में टेक्निक क्या है लिटरेचर रिव्यू करने की। जी हम लोग तो एक एक रिसर्च ढूंढते रहते हैं, हाँ। तब भी समझ में नहीं आता कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो अभी तक आपको 2 सॉफ्टवेयर सिखा दिए मैंने ऊपर, मतलब काफी इन डेप्थ में भी सिखा दिए, एक वॉस व्यूअर यस मैम, और एक ये पब्लिश एंड पैरिश, ठीक है यस जी। मैम। मजा आ मैम गया। स्काई से, मैम वो स्काई सबका एक बार स्पेलिंग रिपीट कर दीजिए। SCIHUB जी, एनीवन। SCIH। हाँ जी, अभी तक कुछ पूछना है हेलो जी। सॉफ्टवेयर के नेम एक बार रिपीट करिएगा। सॉफ्टवेयर के नेम, ठीक है। मैं एक काम और भी करूंगी, ये जो जो सॉफ्टवेयर के मैंने लिखा है वो मैं वो जो फॉर्म भरने के लिए आपको दिया है ना, उसमें भी टाइप भी कर दूंगी, ठीक है। मैंने वॉस व्यूअर VOS व्यूअर कराया आपको, और पब्लिश एंड पैरिश सर्च करोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर आपका यहाँ पे लिखा भी हुआ था, और आपको चाहिए तो मैं नाम प्रॉपर उसमें लिख दूंगी, उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दूंगी, ठीक है, तो आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगी जी। सो नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना था, SLR, you want to do SLR
स्ट्रक्चरल लिटरेचर रिव्यू। यस मैम। तो आई थिंक अभी यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चरल लिटरेचर रिव्यू, एक सेकंड मेरे को देखने दो। वो तो आई थिंक मैंने अभी बंद कर दिया अपना वो। और एक सेकंड, या तो मैं अपना स्क्रीन शेयर ऑफ करके फिर वो ढूंढ के लाती हूँ कि वो मेरी पर्सनल आईडी में है, ठीक है। स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग, अभी तो नहीं आ रही ना मेरी स्क्रीन। तब तक आपको मैं वैसे कंसेप्ट समझा देती हूँ एसएलआर होता क्या है, एंड अपना आईडी भी ओपन कर लेती हूँ साथ साथ। तो फ्रेंड्स, एसएलआर जो है वो बेसिकली क्वालिटेटिव के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे आपने बिब्लोमेट्रिक यूज़ किया था, किसके लिए किया था? क्वांटिटेटिव के लिए। एसएलआर ज़्यादातर क्वालिटेटिव के लिए यूज़ किया जाता है। एंड एसएलआर के अंदर एक और चीज़ क्या होती है कि वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ डाटा को एक साथ नहीं कर सकते। आपने देखा था थाउजेंड्स ऑफ डाटा हम कर रहे थे वहाँ पर बिब्लोमेट्रिक्स में। एसएलआर में हम लोग थाउजेंड्स ऑफ डाटा को नहीं एक साथ कर सकते, ठीक है। उसमें हमें कुछ ही नंबर ऑफ डाटा को कर पाएंगे सॉल्व, क्योंकि वो मैनुअल है। बिब्लोमेट्रिक इज सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड है, पूरा सॉफ्टवेयर लगा लो हो गया। लेकिन एसएलआर हमारा मैनुअल है, ठीक है, तो हम मैनुअली करते हैं उसको, इसलिए मिल गया मुझे। और उसमें डाटा कितना होता है? छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन वी डू एसएलआर फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ? कैन एनीवन इन्फॉर्म मी, यस और नो? नो मैम। वी कैन डू। एसएलआर दोनों के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। ज्यादातर क्वालिटेटिव, लेकिन दोनों के लिए यूज हो सकता है, पर उतना ऑथेंटिक नहीं होगा जितना आपका बिब्लोमेट्रिक या मेटा था। मेटा भी क्वांटिटेटिव के लिए, ठीक है। इज दिस क्लियर? ओके, मैं अब आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो इज इट विजिबल टू यू? माई स्क्रीन इज विजिबल जी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये मैंने लिटरेचर व्यू किया था। और अगेन मैं बता दूं कि अभी का टॉपिक मेरा अलग है, ये टॉपिक अलग है, फिर भी आपको तरीका यही है। अभी भी मैं ऐसे इसी मेथड से एसएलआर कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर एक फुल एसएलआर का मेथड देखें तो ये फुल फॉर्मेट है, जो कि मेटा डिटेल्स, मेथडोलॉजिकल डिटेल्स हम लिखते हैं। इसके लिए आप एक्सेल शीट खुद बनाते हो, अपनी एक्सेल ओपन करना, अपने आप बनाते हैं, उसके अंदर ये टाइटल्स देते हैं। अब ये फुल वाला अभी आपको करने की जरूरत नहीं है। आप एक चाहते हो कि मेरे को बस अपनी रिसर्च के लिए इसको भी यूज कर सकते हो, जो मैंने अपने लिए किया था वो वाला। तो आप सबसे पहले सीरियल नंबर लिखते हैं। सीरियल नंबर के बाद ये खुद बनाओगे, ये कहीं लिखा हुआ का जरूरत नहीं है, ठीक है। ईयर लिखेंगे कि जिससे भी आप लिटरेचर व्यू कर रहे हो वो कौन सी वाले ईयर में लिटरेचर पब्लिश थी। जैसे कि 2019-22 आप देख रहे हो, मैंने सारे लेटेस्ट किए। पास 5 ईयर्स आर ओके। अगर आपके में डाटा इतना नहीं मिल रहा तो पुराना ले सकते हो, अदरवाइज मिल जाता है आराम से। देन जर्नल नेम, कि कौन से जर्नल में वो वाली रिसर्च पब्लिश थी। तो जैसे कि ये वाले जर्नल में कुछ हो सकता है, शोध गंगा के थीसिस हो, तो मैंने वो चीज लिख दी उसकी जगह पे। देन यू राइट टाइटल, जिस लिटरेचर रिव्यू को आपने किया उसका टाइटल क्या है। एटलीस्ट आप लोग ना ये एसएलआर यूज करो। अगर आपने जस्ट शुरू करना है, आपको ये नहीं पता कि मैंने रिसर्च में क्या करना है और लिटरेचर रिव्यू शुरू करना है, इससे क्या बेनिफिट होगा, एंड में आप जो मर्जी मेथड यूज करो, एटलीस्ट आपके पास ना सारा डाटा एक जगह इकट्ठा है। आपको साइटेशन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, यू विल फाइंड इट इजीली, योर साइटेशंस वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इससे। मैं खुद, मुझे नहीं पता मैं आगे क्या करूंगी, लेकिन अभी एसएलआर करना चालू है। लिटरेचर व्यू करने का मतलब साथ साथ एसएलआर करना, ठीक है। दिस विल बी बेटर फॉर यू। टाइटल लिखा। अब जो रिसर्च हम पढ़ते हैं ना, उसके अंदर कीवर्ड दिए होते हैं, सबको पता है। कीवर्ड 3 to 5 कीवर्ड्स होते हैं। तो ये कीवर्ड उन रिसर्चेस में थे, तो मैंने वो लिखती गई इस पे, इसमें, ये सब रिसर्चेस में कीवर्ड्स थे। सो कीप राइटिंग देम। देन कंट्री, कि वो रिसर्च इंडिया की थी, जॉर्डन की थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गैप फाइंड होगा। ज्यादातर रिसर्च यार इंडिया में की हुई है, तो यहाँ पर हम ज्योग्राफिकल गैप तो नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन अगर कुछ ऐसी रिसर्च है आपके टॉपिक की कि वो इंडिया में नहीं की हुई, बाहर की ही रिसर्चेज मिल रही है आपको, तो आप क्या कहोगे, इंडिया में इसकी स्टडी कम है, मुझे ज्योग्राफिकल गैप मिल गया, ये भी आप कह सकते थे। देन क्वालिटेटिव है रिसर्च की, क्वांटिटेटिव है। अब यहाँ पर मेथोडोलॉजिकल गैप भी फाइंड कर सकते हो
या फिर इनकी ही मैथडोलॉजी को अपनी रिसर्च में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं देख रही हूँ ज्यादातर मेरी रिसर्च क्वांटिटेटिव दिखाई दे रही थी, और पीएचडी में हम फ्रेंड्स क्वालिटेटिव ज्यादा करते हैं कि क्वांटिटेटिव, क्या डिजायरेबल है, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव? कुछ भी बोलो। क्वांटिटेटिव मैम, क्वांटिटेटिव। अभी मैंने स्टार्टिंग में भी इसका हिंट दे दिया था, यस, कि क्वांटिटेटिव ज्यादा डिजायरेबल है, क्योंकि न्यू नॉलेज देना यार, अभी उतने बड़े नहीं हुए हम, कहीं ना कहीं थोड़ा और ज्ञान चाहिए हमें, क्वालिटेटिव में न्यू थ्योरी दे देना, है ना। यस, तो क्वांटी थोड़ा ज्यादा कर रहे होते हैं हम। वैसे फिर हर एक रिसर्च का हमने देखा कंक्लूजन या इंट्रोडक्शन। रिसर्च का इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन वाले पार्ट से आपको क्या मिलेगा, मेन फाइंडिंग, कि उस रिसर्च में एक्चुअली फाइंड क्या किया हुआ है। तो डिफरेंट डिफरेंट रिसर्चेस की मेन फाइंडिंग हम यहाँ पर टाइप करते गए या फिर उनसे कॉपी करते गए, ठीक है। देन वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को कंस्ट्रक्ट भी बोल सकते हैं, आपको पता है रिसर्च के लिटरेचर वेरिएबल्स को कंस्ट्रक्ट भी बोल सकते हैं, यस, कि उन्होंने ये वाले वेरिएबल्स या कंस्ट्रक्ट यूज किए हैं अपनी रिसर्च में। देन सैंपल साइज कितना था, अब आप देख रहे हो ज्यादातर रिसर्चेस का सैंपल साइज 500, 246, 135, 44 सिर्फ इतना है। अब आप इसके बेसिस पे अपनी रिसर्च का सैंपल साइज कितना रखना आइडिया लगा सकते हो, राइट। देन ऑथर साइटेशन क्यों रख रही हूँ मैं साथ साथ, मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे जब अपने रिसर्च में इसका कोई भी डाटा लिखा मैंने, मुझे बिब्लियोग्राफी रेफरेंस में देना पड़ेगा, ठीक है। ये मेरा रेडीमेड पहले ही चार्ट तैयार है, एंड में जाके क्या करोगे आप, उधर ढूंढोगे, रिसर्च कहाँ पे आपकी मिल ही नहीं रही, प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे लिखा होगा तो जिंदगी में नहीं घूमेगी, घूम भी गई तो यार मेरे पास पूरा डाटा है, ठीक है। देन डाटा कलेक्शन, उस रिसर्च में कैसा किया हुआ है, मैंने जो रिसर्च देखी थी उसमें क्वेश्चनर भरवाए थे, सेकेंडरी डाटा यूज किया गया था, ईमेल से भरवाया था, क्वेश्चनर ज्यादातर भरवाए गए। तो ये आप लिख लोगे तो आपको पता चलेगा कि आप भी कैसे डाटा कलेक्ट कर सकते हो, और आपको लिटरेचर में लिखना होता है कि दिस डाटा इज एक्सेप्टेबल बाय दीज मैनी रिसर्च, दैट इज व्हाई आई एम आल्सो डूइंग गुड। बेस चाहिए लिटरेचर का, वो मिला आपको। देन डाटा एनालिसिस कैसे किया उन रिसर्चेस ने, अब ये वाली जो रिसर्च है इसमें एसपीएसएस का यूज किया हुआ है, डिस्क्रिप्टिव मतलब जस्ट लिखा हुआ है, उसमें कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं लगाए। इसने कॉल्मरग्रॉव सिमरनॉव को यूज किया है, इसमें स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडल SEM यूज किया गया है, ठीक है। तो दीज आर मेथड विच वी विल गेट फ्रॉम लिटरेचर रिव्यू। कोई प्रॉब्लम है किसी को यहाँ तक, प्लीज पूछे कि एक्चुअली इसमें क्या आएगा, वो पूछना है तो किसी पॉइंट में कि इसमें क्यों लिखा है या क्या लिखा, नथिंग, आ रहा है समझ, ओके। देन रिसर्च गैप, अभी जैसे नैन ने आपको बताया था कि रिसर्च गैप आप कहाँ ढूंढ सकते हो, उसके कंक्लूजन, सुजेशंस, रिकमेंडेशन में, यस मैम। वहां से ढूंढेंगे हम, फिर लिखेंगे कि ये गैप कैसा लग रहा है, जो मैंने बताया था आपको कि ये कौन सा वाला गैप है, ये इंडस्ट्रियल गैप है, इंडस्ट्रियल लाइक ये रिसर्च एफएमसीजी में हुई है, हम टेक्सटाइल में करना चाहते हैं, ये रिसर्च ये वाली मार्केट में हुई है, हम यहाँ करना चाहते हैं, या फिर हमारा पॉपुलेशन गैप है, जोग्राफिकल गैप है, आपको ये कैसा गैप लग रहा है। तो वो सारे गैप आप 2 कॉलम भी बना सकते हो इसके, एक रिसर्च का सुजेशन उन्होंने क्या दिया हुआ है, और एक मुझे क्या लगता है कि इससे मेरा रिसर्च में क्या गैप मैं सॉल्व करने वाली हूँ, ठीक है। देन मैंने क्या किया, रिसर्च जहां जहां से ली साथ साथ उसका लिंक लिखती गई, क्योंकि घूम जाते, ये अपने पर्सनल यूज के लिए लिखा है, ठीक है। एंड में आके मेरे को ढूंढना नहीं पड़ेगा, ये स्कोपस से लिया, एक लिंक सर्च किया और मिल जाएगा आराम से। कोई भी पूछे का सच्ची में तुमने रिसर्च करी है कि नहीं, लिटरेचर रिव्यू, भाई हमने सच्ची में किया, देख लो एविडेंस है, ठीक है, आराम से यू कैन इजिली फाइंड एनी टाइम। रिसर्च के कुछ DOI नंबर्स होते हैं, DOI की फुल फॉर्म बताओ, हम सबका नहीं ढूंढो, चाहे गूगल सर्च करके बताओ, जो जैसे मर्जी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। DOI कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं, जैसे हम लोगों का अपना अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड बना होता है ना, सबका अलग DOI होगा, ऐसे ही सभी रिसर्च का अपना अपना DOI। हाँ जी, कुछ बोल रहे हो, मिली किसी को? हाँ, कोई और बता दो, कोई भी। इतनी चीटिंग तो कर लो यार, गूगल पे सर्च मार लो DOI। हाँ
Digital object identifier. ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो बेसिकली हमें हाँ, कांची, ओशीन, जैन और स्मृति ने बताया हमें। ग्रेट, ठीक है। डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, ये हमारा पैन कार्ड है, उसका DOI है। क्लियर जी, सही है। तो आज काफी चीजें ऐसी सीख रहे हैं हम जो बिल्कुल ही न्यू है हमारे लिए, है ना। डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, ग्रेट। तो इस तरीके से आप अपनी रिसर्च का लिटरेचर भी जितने मर्जी करो, सबका साथ साथ SLR बनाते रहो। ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है। चॉइस या तरीके सबके अलग अलग होते हैं रिसर्च करने के, लेकिन ये मेरे पर्सनल इसलिए क्योंकि मुझे पता है सारा एक जगह मिल गया, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं ना होगी। मुझे कुछ भी सर्च करना है, यार इसमें क्या दिया था, मेथड कौन सा लगाया था, मैंने लिखा हुआ है। क्लियर? यस, ओके। सो यहाँ तक तो हमने ये चीजें कर ली। सो डू वी हैव सम मोर टाइम, मतलब क्या इसका कोई टाइम है लिमिट? इफ वी वांट टू डिस्कस वन मोर सॉफ्टवेयर। नवदीप मैडम, जी बस 5 बजे का टाइम था, 4 से 5 का। जी 5 ना? मिनट है। हाँ जी, और वो आप एक दिन आपका लेक्चर में उसका आप कंक्लूड कर लीजिएगा, फिर एक दिन और समय निकाल के आपका वो हाउ इज प्रिपेयर द नेट GRF का एग्जाम जैसे करते हैं, जी 5 नेक्स्ट मिनट में वीक वो में पूरी करके आपका, डिस्कस कर लेती हूँ। हाँ जी, है ना, बाद में करा लेंगे। अभी आप कंक्लूड कर लीजिए, 5 बजे का टाइम था, जो बच्चों को मंडे को एग्जाम है ना। जी जरूर। तो आप 5 मिनट कंक्लूड कर लीजिए, फिर बोर्ड ऑफ थैंक करेंगे नैन। जी जरूर। ओके मैडम, थैंक यू सर। सो फ्रेंड्स, सो दीज ऑल थिंग्स वी कवर्ड। आज हमने एक्चुअली लिटरेचर रिव्यू कर लिया, और वैसे भी जो दूसरा पार्ट था हमारा वो रेफरेंस में आता है, वो एक अलग टॉपिक है ऑल टुगेदर, है ना। तो उसको फिर कभी हम देखेंगे रेफरेंसेस को। जी, सो फ्रेंड्स, कभी भी अपनी लाइफ में, अगेन आज का जो थॉट था कि स्ट्रेस नहीं लेने का, ठीक है, क्योंकि एक लेवल होता है, थोड़ा सा जो लेवल होता है स्ट्रेस का वो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना इज नॉट गुड। एक्चुअली वो नेटवर्क मेरी साइड से आई थिंक लॉस हो गया था। No, you're still not audible, ma'am. ओह सॉरी जी, Ma'am, am I audible? Yes, ma'am. So let us conclude now. Yes, ma'am. जी, सो फ्रेंड्स, नेट JRF के लिए आपको पता है कि मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, सो मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑल्सो, ठीक है। तो आपको आगे प्रोफेसर बनने के लिए, PhD रिसर्च पेपर्स भी लिखने और API स्कोर के लिए आपको बेसिकली नेट JRF भी चाहिए, ठीक है। तो 9 क्लासेस आप सर्च करके फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है जी। एंड आई हैव सम गिफ्ट ऑल्सो फॉर यू इफ यू वांट टू गेट माई क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट। Please present vote of thanks. जी, so thank you so much to everyone, and I hope you learned so many things, and I really like your encouragement and participation. So इसी तरीके से हो सकता है हम आगे फिर से मिलें आप सबके साथ, and do share your feedback as well. I am so happy कि हाँ, you all are interested and you are importing so much in your study. Thank you so much मैडम वैसे Miss University। हाँ जी बहुत अच्छा था आपका स्पीच, जी, थैंक और यू। बच्चे सब मोटिवेशन हुए उसमें। नेक्स्ट टाइम हम आपको और समय देंगे। Thank you so much, sir, and all my dear friends. हमारे कुछ बच्चे हैं मैडम ऑफलाइन सुन रहे थे, आता हमने LED लगी थी, उसे बच्चों ने अटेंड किया, कुछ ऑनलाइन थे, जी बहुत अच्छा, अच्छा रहा। अब मैं कॉलेज की ओर से नैन संगीत से बोलता हूँ कि आप वो सब थैंक करें। नैन, A warm and graceful evening to the most valued guest, Miss Navdeep Kaur ma'am. You are best teacher, superb motivator and top educator. I extend a really heartful vote of thanks to our guest, Ma'am Navdeep Kaur, for sparing time from your busiest schedule to grace us. Today we had the opportunity to hear from you about literature reviews and techniques, how to review literature efficiently and effectively using various methods like SLR, bibliometrics, etc. Thank you, ma'am. This will surely be going to encourage us in our future times. Plan, act, observe, reflect. Thank you, ma'am. thank you so much, and all the very best for your future journey as PhD scholars and NET JRF. I am so grateful, yes, and Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, and have a Thank nice you, day. ma'am. Stay blessed So much, always. ma'am. Thank you. Thank you, ma'am.